آپ نے بتایا نہیں، بدلے میں آپ کو کیا چاہیے؟ میرے پاس فی الحال تو دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی یہ 20 لاکھ روپے میرے پاس آئیں گے میں آپ کو فوراً لوٹا دوں گا۔ فی الحال میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے ارے، یہ کیا کہہ رہے ہو فرمان؟ تم میری کمپنی کے سرمایہ ہو، بتاؤ نا، تمہارے بغیر میری کمپنی نہیں چل سکتی، پھر میں بھلا تم سے سودا کیوں کروں گا؟ نہیں سر، آپ جو مانگیں گے میں دوں گا، سودے کی بات نہیں ہے۔ فرمان بے بسی کے عالم میں بولا، کیا تم مجھے کچھ بھی دے سکتے ہو؟ مطلب کچھ بھی؟ مجاہد شاہ دھیمے مگر معنی خیز لہجے میں بولا، جی سر، کچھ بھی، اپنی بیٹی کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، مجھے تمہاری جان ہی چاہیے۔ اس نے دو ٹوک جواب دیا، جس پر فرمان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سر کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میری جان مطلب؟ فرمان گھبرا کر بولا۔ تبھی مجاہد اپنی کرسی سے اٹھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا، ارے تمہاری جان مطلب؟ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رشتے داری جوڑ لوں، تم بہت اچھے ہو، پوری کمپنی سنبھالی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کھو دوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہماری یہ دوستی پکی ہو جائے، بس میں تم سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ سر میں آپ کی بات نہیں سمجھا، پر اس میں میری جان کہاں آ گئی؟ فرمان حیرت سے بولا، ارے تمہاری کوئی بہن تو ہوگی نا، کوئی بہن ہے یا نہیں؟ وہ بہن بھی تو تمہاری جان ہی ہوگی، تو بس میں تم سے وہی جان مانگ رہا ہوں۔ مجاہد شاہ کی بات سنتے ہی فرمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا ہوا فرمان؟ مجھے لگا تمہیں میری بات پسند نہیں آئی۔ دیکھو میں تو رشتے داری میں پہل کر رہا ہوں، تمہاری بیٹی کا علاج کروانے کے لیے ابھی تیار ہوں، تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہا، میں تو بس چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلقات رشتے داری میں بدل جائیں۔ سوچو کتنا اچھا ہوگا، میں تمہارا جیجا بن جاؤں گا تو تمہاری قسمت بھی بدل جائے گی، ہے نا؟ مجاہد دو ٹوک لہجے میں بولا، جبکہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی شرارت تھی۔ سر آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، پر فرمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی پھول جیسی بہن جو کہ ابھی 18 سال کی تھی، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں اس کے بھائی کی اس کے باس کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمان تمہاری بہن کو کیا چاہیے ہوگا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری بہن کتنی خوش نصیب ہوگی جو اسے مجھ جیسا شوہر ملے گا جسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ چلو ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر مجھے بتا دینا۔ مجاہد شاہ نے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا اور اس کی گال پر ہلکی سی چپت لگا کر چل دیا، جبکہ فرمان گہری سوچوں میں گم تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کے علاج کے لیے اتنی بھاری قیمت مانگ کر اس نے کوئی غلطی تو نہیں کر لی۔ فرمان اور علیحہ کی شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے جب انہیں بیٹی کی خوشخبری ملی۔ حالہ پھول جیسی بیٹی تھی، لیکن پیدا ہوتے ہی پتا چلا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے، اور یوں وہ خوشی مان پڑ گئی۔ مہرین کو اپنی بھتیجی جان سے پیاری تھی، وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ تبھی فوراً بولی، بھیا میں اپنا دل دینے کو تیار ہوں، دیکھیں میرا دل نکال کر میری بھتیجی کے اندر ڈال دیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس کے معصومانہ سوال پر فرمان رونے لگ گیا، ارے مہرو ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہوتا تو کیا میں ابھی تک اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھ رہا ہوتا؟ میں اب تک اپنی جان دے چکا ہوتا۔ مہرین اپنے بھائی کی بے بسی دیکھ کر رونے لگی کہ اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا، لیکن وہ بیٹی چند عرصے کی مہمان تھی۔ علیحہ رات کو اپنی بیٹی کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، فرمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے باس سے مدد مانگ لیں، آپ کے باس تو بہت اچھے ہیں اور آپ نے بھی تو ان کی کمپنی کو کتنا اچھا چلایا ہے، ایک بار ان سے بات کر کے دیکھیں۔ فرمان نے اپنی بیوی کی بات سن کر گہری سوچ میں کہا، ہاں علیحہ میں بات کر کے دیکھتا ہوں۔ یوں فرمان نے اپنے باس مجاہد شاہ سے بات کی، لیکن مجاہد شاہ نے بدلے میں جو قیمت مانگی وہ بہت بھاری تھی۔ مہرو یہ دیکھو، یہ فراک خالہ کو کتنا اچھا لگے گا۔ مہرین اپنی دوست زلیخا کے ساتھ مال میں گھوم رہی تھی جب زلیخا نے اس کی توجہ ایک خوبصورت فراک کی طرف دلائی، ارے یہ تو بہت پیاری ہے، چلو میں اس کے لیے یہ فراک لے لیتی ہوں۔ مہرین فراک خریدنے کے لیے بے دھیانی میں دکان کی طرف بڑھنے لگی، یہ سوچے بغیر کہ وہ کسی سے ٹکرا سکتی ہے۔ یوں اس کی ٹکر کسی اور سے نہیں بلکہ ایک اونچے قد اور روبدار شخصیت کے مالک مجاہد شاہ سے ہوئی۔
तुम देख कर नहीं चल सकते, बड़ा शौक है ना तुम्हें लड़कियों से टकराने का, बेशर्म इंसान। मेरीन ने गुस्से से उसे बहुत कुछ सुना दिया। मुजाहिद शाह ने सामने खड़ी उस चिटांग जैसी लड़की को यूं जुबान चलाते हुए देखा तो दंग रह गया। अरे वाह, मुझे तो लगा था कि बिल्ली सिर्फ म्याऊं म्याऊं करती है। मुजाहिद की ये बात सुनकर मेरीन का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। अगले ही लम्हे उसने एक जोरदार थप्पड़ मुजाहिद शाह के चेहरे पर जड़ दिया, ये जाने बगैर कि वो उसके भाई का बॉस है। मुजाहिद शाह का चेहरा एक तरफ हो गया। उसके दो गार्ड फौरन आगे बढ़े और मेरीन को दोनों हाथों से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम लोगों को भी ऐसे ही थप्पड़ मारूंगी अगर नहीं छोड़ा तो, मेरीन चीख चीख कर कहने लगी, जबकि जुलेखा ये सारा तमाशा देख रही थी। मुजाहिद शाह ने फौरन गार्ड्स को इशारा किया, छोड़ दो इस लड़की को। गार्ड्स ने मेरीन को छोड़ दिया और यूं जुलेखा उसे लेकर वहां से चली गई। इस लड़की की तस्वीर ले लो और इसका सारा बायोडेटा मुझे चाहिए। मुजाहिद शाह ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए अपने गार्ड्स को हुक्म दिया। यूं एक गार्ड ने मेहरीन की तस्वीर ले ली। अच्छा तो ये बात है, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरे प्यारे मैनेजर फरमान की बहन निकली। अब तो खेल खेलने में और भी मजा आएगा। मुजाहिद शाह अपने बेड पर बैठा था। उसके हाथ में मेहरीन की तस्वीर थी जिसे वो देखते हुए हम कलाम था। वो मेहरीन की खूबसूरती का जायजा ले रहा था। सफेद चेहरा, मोटी मोटी भूरी आंखें, गुलाबी होंठ और लंबे खूबसूरत कमर तक आते बाल, ये सब देखकर वो उस लम्हे को याद करने लगा जब वो मॉल में उससे टकराया था। लेकिन अफसोस, मुजाहिद शाह गुस्से से लाल हो गया। काश तुमने मुझे थप्पड़ न मारा होता तो मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता, लेकिन थप्पड़ मारकर तुमने अपनी बर्बादी को खुद दावत दी है मेहरीन। अब देखना कैसे तुमसे बदला लेता हूँ। ये कहते हुए उसने फौरन फरमान को कॉल की। फरमान, पैसों का इंतजाम हो गया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल ही मेरे ऑफिस आकर सारे पैसे ले लेना। नहीं नहीं, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। तुम तो मेरे यार हो, मेरे भाई जैसे हो। मेरा तो दिल करता है कि बस हमारे बीच कुछ रिश्ता होता तो कितना अच्छा होता। चलो मिलते हैं कल, मेरे ऑफिस आना। ये बात कहते ही मुजाहिद शाह ने फोन बंद कर दिया। उसकी नजरों में बड़े बड़े मंसूबे गर्दिश करने लगे। अब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेहरीन का मेरी बीवी बनने का इंतजार है। जब वो मेरी बीवी बनकर मेरे साथ इस रूम में होगी तब देखना कैसे मैं उससे बदला लेता हूँ। ये कहते ही मुजाहिद शाह का कहका पूरे कमरे में गूंज उठा। अलीहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी बहन अभी 18 की भी नहीं है और तुम कह रही हो कि मैं उसका रिश्ता उससे दे दूं। फरमान गुस्से में बोल रहा था, मेरा बॉस जो कह रहा है वो मैं नहीं कर सकता। और अलीहा, मेहरीन का क्या बनेगा? उसका क्या कसूर है? अलिया ने फरमान को समझाने की कोशिश की, अगर इतनी सी कुर्बानी देने से हमारी बेटी की जिंदगी बच सकती है तो हम वो कुर्बानी क्यों न दें। तुम मेहरीन से बात करके तो देखो, क्या पता वो मान जाए। मेहरू के भी तो कुछ अरमान हैं और फिर मेहरीन को और क्या चाहिए। वो तुम्हारी इकलौती बहन है, अच्छे घर में जाएगी, राज करेगी। तुम्हें तो फख्र होना चाहिए फरमान, तुम कैसे भाई हो। अलिया गुस्से से बोली, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ और तुम हो के इतनी सी बात पर सोच रहे हो। फरमान सर थाम कर बैठ गया। ये कुर्बानी बहुत बड़ी है अलिया, उन दोनों में 12 साल का फर्क है। मुजाहिद शाह जिसने अपनी जिंदगी की 30 बहारें देख ली हैं, जो पूरी दुनिया से खेलना जानता है, क्या वो वाकई मेरी 18 साल की मासूम बहन से शादी करना चाहता है? और उसे इस रिश्ते से क्या मिलेगा? ये सवाल फरमान के जहन में बार बार गूंजता रहा। वो यही सोच रहा था कि मुजाहिद शाह जो आज तक अपनी सच्चाई किसी के सामने खोलकर नहीं रखता, वो उसकी बहन का रिश्ता क्यों मांग रहा है। फरमान ने उसके बारे में जानने की बहुत कोशिश की थी, पर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में उसका कोई नामो निशान तक नहीं था। मेहरीन उस वक्त जुलेखा से बात कर रही थी। इस वाक्य को उसने नजरअंदाज करते हुए नाक से मक्खी की तरह उड़ा दिया था। उसे ये ख्याल भी नहीं आया कि मुजाहिद शाह अब उसके पीछे पड़ गया है और बदला लेकर रहेगा। मुजाहिद शाह ने उसकी सारी तफसीलात भी निकलवा ली थी, लेकिन मेहरीन को इसकी कानो कान खबर तक न थी। नहीं जुलेखा, कैसी बातें कर रही हो? हजारों लड़के मुअज्जिज बने फिरते हैं, होगा वो भी किसी रियासत का शहजादा। मुझे क्या, उसकी तो अकल ठिकाने लगानी ही थी जो मैंने उसी वक्त लगा दी थी। अब वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, ऐसा कुछ नहीं होगा।
तुम ऐਵੇਂ फजूल में सोच रही हो, जरूर उसे अंदाजा हो गया होगा अपनी गलती का। जरूरी थोड़ी है जो मुझसे बदला लेगा। महरीन ने जुलेखा को तसल्ली दी। अच्छा अच्छा जुलेखा, मैं फोन रखती हूँ। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, महरीन ने जल्दी से फोन बंद कर दिया। भाई आप, खैर तो है? वो फौरन उठकर बैठ गई जब फरमान अंदर आया। हाँ बस वैसे ही। कैसी चल रही हैं स्टडीज? फरमान ने नजरें चुराते हुए पूछा। स्टडीज तो बहुत अच्छे से चल रही हैं, पर आप यहाँ कहने क्या आए हैं? कोई बात है? महरीन ने घबराकर पूछा। दरअसल आज मैं अपने बॉस के पास गया था, मैंने उनसे मदद मांगी है, फरमान ने कहा। महरीन की आंखें चमक गईं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपके बॉस ने मदद की? फरमान ने खुशी से सर हिलाया तो महरीन उछलने कूदने लगी। अरे भाई, इसका मतलब है कि हालत ठीक हो जाएगी, वो भी हमारे साथ खुश रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। महरीन बहुत खुश हो गई। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हालत ठीक हो जाएगी। मेरे बॉस ने मेरी बहुत मदद की है, फरमान ने कहा। महरीन रुक गई और पूछा, भाई क्या बदले में कुछ नहीं मांगा? कितने अच्छे हैं आपके बॉस, मैंने तो उन्हें बहुत अकड़ू समझा था। नहीं, बदले में एक चीज मांगी है। फरमान की आवाज किसी गहराई से निकली। महरीन जो खुशी खुशी उछल रही थी, एक जगह रुक गई। क्या मांगा है? महरीन ने फौरन पूछा। वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मुझे इस बात का मतलब नहीं समझ आया महरीन, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। फरमान ने अपनी बहन के हाथ थामते हुए कहा। भैया क्यों डर रहे हैं? इसमें डरने वाली क्या बात है? कुछ लोग दुनिया में वाकई अच्छे होते हैं, आपके बॉस भी उन्हीं लोगों में शामिल होंगे। महरीन ने फरमान को तसल्ली दी। फरमान मुस्कुरा दिया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस डर लग रहा है कि ये बात तुम्हें बतानी चाहिए या नहीं। फरमान ने गहरी सांस ली और कहा, दरअसल मेरे बॉस ने कहा है कि मैं अपनी बहन का रिश्ता उन्हें दे दूं। ये सुनकर महरीन के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कुछ देर खामोश हो गई और सोचने लगी। मतलब आप मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं, यानी मेरा रिश्ता उनके साथ जोड़ दे? महरीन ने सर थाम लिया। हाँ बॉस ने यही कहा है, पर इसलिए नहीं कहा कि मैंने उनसे पैसे मांगे हैं। वो इन दोनों बातों को जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन शायद वो इसी वजह से ये सब कर रहे हैं क्योंकि मैंने उनसे मदद मांगी है। महरीन, मैं 20 लाख रुपए लेकर आया हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि वो पैसे वापस कर दूं या ना करूं। अगर पैसे वापस कर दिए तो हमारी बेटी का इलाज कैसे होगा? तुम्हारी भतीजी कब तक जिंदा रहेगी? लेकिन अगर पैसे वापस ना किए तो बदले में तुम्हारी शादी करनी होगी। फरमान ने जज्बाती होकर महरीन के बाजू थाम लिए। महरीन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर एक बहुत बड़ा बोझ आ गिरा हो। उसकी जिंदगी पहले ही मसाइल से भरी हुई थी, लेकिन अब यह मसला उसके मसाइल में मजीद इजाफा कर गया था। तो फिर क्या सोचा तुमने महरीन? मलिहा ने अपनी नंद से कहा। वो दोनों खाने की मेज पर बैठी हुई थी, जबकि महरीन अभी भी बुत बने सामने देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसने ये खबर सुनी थी, तब से उसके होश उड़े हुए थे। पर कैसे भाभी, मैं ये सब कैसे कर दूं? मलिहा फौरन बोली, हालांकि जिंदगी का सवाल है, ऐसी बात तो नहीं है कि तुम किसी झोपड़ी में जाकर रहोगी। तुम्हारी शादी कंपनी के बॉस के साथ हो रही है, जो दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो तुम्हें और क्या चाहिए? पर भाभी कैसे? जिस शख्स को मैंने कभी देखा ही नहीं, न सुना है, उसके साथ मैंने कभी जिंदगी गुजारने के ख्वाब भी नहीं देखे, मैं कैसे उसके हाथ में अपनी जिंदगी की डोर थमा दूं? न मुझे उसके आगे का पता है, न पीछे का, ना ही कोई गारंटी है कि मैं सारी जिंदगी उसके साथ रह पाऊंगी या नहीं। महरीन की बात सुनकर मलिहा उसे समझाने लगी, क्या तुम्हें अपने भाई फरमान पर भरोसा नहीं है? कितने सालों से तो फरमान उसके साथ काम कर रहा है। अच्छा इंसान होगा, तभी तो फरमान उसे इतनी बड़ी पोस्ट पर रखे हुए है। महरीन गहरी सोच में पड़ गई थी। क्या सोचा तुमने फरमान? जी सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये फाइल आप एक दफा रीड कर लें। फरमान झिझकते हुए बोला। फरमान, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ। इन सब को छोड़ दो, एक दफा तुम मेरे साथ रिश्तेदारी जोड़ लो, फिर तुम्हें सबकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं होगी। तुम बिल्कुल मेरे साथ कंपनी को हैंडल करोगे। मेरे ऑफिस के साथ मैं तुम्हारा ऑफिस बनाऊंगा। बस एक दफा हाँ तो कर लो। तुम्हारी बहन ने क्या कहा? मुजाहिद शाह ने काफी संजीदगी से फरमान को मुखातिब किया।
फरमान उसकी बातें सुनकर हैरत में मुब्तला हो गया था। सर मैं क्या करूं, मेरी बहन काफी लाडली है, इतनी जल्दी नहीं मानेगी, ना ही उसने आपको देखा है, ना आपका ज्यादा पता है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो फरमान, तो मैंने कौन सा उसे देखा है या उसका नाम भी पूछा है? मुझे इस बात की परवाह नहीं, मुझे परवाह है तो बस इस बात की कि हम जल्द अज जल्द रिश्तेदारी में बदल जाएं। तो फिर तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मानता हूँ मैं तुम्हारी बहन से शादी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा असल मकसद तो यही है कि मेरे और तुम्हारे बीच जो दोस्ती है वो पक्की हो जाए। देखो मैं कंपनी संभाल संभाल कर थक जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई तो ऐसा हो जो मेरे साथ कंपनी संभाले, और फिर तुम्हारी पोस्ट पर किसी और को रख दूंगा, यूं मेरा काम भी डिवाइड हो जाएगा। मुजाहिद शाह मुस्कुराते हुए कह रहा था। फरमान भी मुस्कुरा दिया। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। जहाँ तक मेरी बहन का ताल्लुक है वो हमेशा मेरी बात मानती है। महरीन इस बार भी हाँ करेगी और फिक्र मत करें, मैं कल ही आपको खुशखबरी दूंगा। भाई मुझे आपसे एक बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसी वक्त महरीन दरवाजे पर खड़ी थी। अरे हाँ क्यों नहीं, फरमान फौरन बोला। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना महरू, बताओ फिर तुमने क्या सोचा? ठीक है मैं तैयार हूँ उनसे शादी करने के लिए। ये सुनकर फरमान ने सुकून का सांस लिया और जल्दी से अपनी बहन को सीने से लगा लिया। महरीन पता है तुम्हारी इस हाँ ने मेरी कितनी मुश्किलात हल कर दी हैं। अब यूँ समझो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरी जान के पहले भी बहुत करीब थी और अब और भी करीब हो गई हो। तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो, जैसे मेरे लिए हाला है वैसे ही तुम भी मेरे लिए उतनी ही अहमियत रखती हो। ये कहते हुए फरमान ने उसके माथे को चूमा। महरीन जज्बाती होकर रोने लगी। मलिया ने भी महरीन को गले लगा लिया। सॉरी आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अरे क्या करूं फरमान, मैं भी चाहता था कि तुम्हारी बहन से मिल लूं, लेकिन बस क्या करूं, हमारी फैमिली में यही रिवाज है कि लड़की होने वाले शोहर का चेहरा भी नहीं देखती। अगर मेरी अम्मा को पता चल गया तो वो बाल उठा लेंगी। बस मेरी अम्मा यही चाहती हैं कि लड़की जब हमारे घर आए तभी चेहरा देखे, लेकिन मेरी बहन तो बहुत जिद कर रही है। मेरे पास आपकी कोई तस्वीर नहीं है और ना ही आप सोशल मीडिया पर हैं, मैं उसे कैसे समझाऊं, इसलिए मैंने आपसे आपकी तस्वीर मांगी थी। फरमान को कुछ देर पहले ही महरीन ने जिद की थी कि मुझे अपने होने वाले शोहर की तस्वीर तो दिखा दे। फरमान शर्मिंदा हो गया था। ये बात सच थी कि मुजाहिद शाह ने आज तक किसी से तस्वीर भी नहीं खिंचवाई थी। मुजाहिद शाह को इन सब का शौक बिल्कुल नहीं था। वो एक संजीदा शख्सियत का मालिक था। अरे अब कह दो ना कि कोई तस्वीर नहीं है। और हाँ, क्या तुम्हारी बहन को तुम पर यकीन नहीं है? तुमने तो मुझे देखा हुआ है, तो उसे बता दो कि मेरे नक्श कैसे हैं, मेरी तस्वीर में क्या रखा है। मुजाहिद शाह ने हंसकर कहा था। फरमान वापस चला गया था। महरीन को तो फिक्र हो गई थी। जुलेखा बार बार उसे शिकायत कर रही थी। अरे ये कैसा शख्स है, न इसकी कोई तस्वीर है, ना ही कोई सोशल मीडिया अकाउंट। मैं तो उसे सर्च कर करके थक गई हूँ। ये कौन सी दुनिया के लोग हैं? जुलेखा अब मेरा क्या बनेगा? पता नहीं ये कैसा इंसान है, लेकिन मुझे अपने भाई पर बहुत भरोसा है और ये भी पता है कि मुजाहिद शाह एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। जुलेखा ने फौरन उसे झिझोड़ कर कहा, ऐसा करो कि एक दिन उसकी कंपनी में चली जाओ, इसी तरह उसके ऑफिस पहुंचकर उसे देख लो, पता चल जाएगा कि कैसा है। जुलेखा की बात महरीन को भी बहुत पसंद आई थी, लेकिन अब तो निकाह को एक दिन बचा था और वो सारा दिन मलिहा ने उसके सर पर पहरा देना था। आज ही उन दोनों का निकाह था। महरीन का दिल टूटा हुआ था। वो सहमी हुई दुल्हन बनी एक जगह पर बैठी थी, जिसके साथ ना कोई दूल्हा था और ना ही कोई बारात। ये कैसा निकाह था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और तो और कुछ देर पहले ही मुजाहिद शाह का ये पैगाम आया था कि फौरन से रुखसती हो जाएगी। दूल्हे के बगैर रुखसती, हर कोई यही सवाल कर रहा था, जिसने फरमान को भी झिझोड़ कर रख दिया था। वो बस सबको यही तसल्ली दे रहा था कि मुजाहिद शाह की बहुत अहम मीटिंग थी, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने कहा कि निकाह वीडियो कॉल पर होगा। यूं निकाह वीडियो कॉल पर पढ़ा गया था, लेकिन अगले ही पल जैसे ही महरीन ने मुजाहिद शाह की आवाज सुनी तो उसका दिल गोया मुट्ठी में आ गया था। वो अकड़ी हुई सख्त आवाज सुनकर चौंक गई। ये आवाज तो जैसे महरीन ने पहले भी कभी सुनी थी, लेकिन कहाँ। महरीन गहरी सोच में गुम हो गई थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। यूं निकाह के फौरन बाद सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मेहमान सारे चले गए। जब फरमान अपनी बहन के पास आया तो कहने लगा, महरू तुम बहुत प्यारी लग रही हो,
अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें मुजाहिद शाह के घर छोड़कर आऊं। आज से वही तुम्हारा घर है, लेकिन हमें तुम्हारी याद बहुत आएगी। महरीन ने जैसे ही अपने भाई की ये बातें सुनी तो फौरन रोते हुए उसके गले लग गई। भैया, मुझे कभी मत भूलिएगा, मैं सिर्फ आपकी वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ, वरना मैं कभी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती थी जिसका चेहरा मैंने अभी तक नहीं देखा और वो मेरे निकाह में भी आ गया है। फरमान ने अपनी बहन के आंसू साफ करते हुए फौरन कहा, फिक्र मत करो महरू, ये सब तुमने सिर्फ मेरी वजह से किया है, क्योंकि तुम्हें अपने भाई पर भरोसा है। मैं ये भरोसा कभी नहीं तोड़ने दूंगा। यूं फरमान ने अपनी बहन का हाथ थामा और उसे प्यार से लेकर उस गाड़ी में बिठा दिया जो उन दोनों को लेने के लिए मुजाहिद शाह ने भेजी थी। महरीन की नजरें जैसे ही सामने उठी तो आलीशान महल नुमा हवेली देखकर उसके होश उड़ गए। वो एकदम बुखला गई थी, न जाने वो इस हवेली में वैसा सुकून पा सकेगी या नहीं जो उसे अपने भाई के घर मिलता था। घर के बड़े होने या छोटे होने से क्या फर्क पड़ता है, यही सोच रही थी कि फरमान ने उसे पुकारा। अरे महरू, क्या सोच रही हो, चलो आओ ना। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यूं महरीन ने उसके हाथ में अपना हाथ दिया। फरमान अपनी बहन को लेकर अंदर जाने लगा। महरीन की आंखें महल नुमा घर की खूबसूरती देखकर दंग रह गई थी। वो एक पल के लिए सब कुछ भूल चुकी थी। कुछ देर बाद उसका भाई उसे छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला गया। मैरीन एक जगह बैठी हुई इंतजार कर रही थी। उसे वहां 1 घंटा हो गया था, लेकिन ना कोई मुलाजिम आया और ना ही मुजाहिद शाह। न जाने ये कैसी शादी थी। वो सुबह से कामदार जोड़े में मौजूद थी और थकन से चूर हो चुकी थी। अगले पल उसके कानों में आवाज आई, अरे बीबी जी, आप आ गई हैं, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। ये एक उढेर उम्र शख्स था जिसने सफेद शलवार कमीज पहनी हुई थी। वो बोला, मुझे अभी साहब ने बताया कि उनकी शादी हो गई है, पर पता नहीं उन्हें क्या सोच के ऐसी इमरजेंसी में निकाह करना पड़ा और किसी को खबर भी नहीं दी। महरीन उसकी आखिरी बात सुनकर चौंक गई। किसी को खबर क्यों नहीं है? क्या इस घर में और कोई नहीं रहता? अरे बीबी जी, इस घर में और कोई कैसे रह सकता है? मुजाहिद साहब के साथ रहने की किसी को इतनी हिम्मत ही नहीं होती। वो किसी को अपने साथ रहने देते तब ना। पता नहीं उन्होंने शादी कैसे कर ली। ये सुनकर महरीन के चेहरे का रंग उड़ गया। कैसी बातें कर रही हैं आप अंकल? अरे बेटा, छोड़ो इन बातों को, चलो मैं तुम्हें साहब जी का कमरा दिखाता हूँ। यूं वो शख्स महरीन को मुजाहिद शाह के कमरे में ले गया। अब उनका इंतजार कीजिए, वो आ जाएंगे, बाकी बातें वो खुद आपको बता देंगे। उस शख्स के चेहरे पर एक अजीब सी अफसुर्दगी थी जो महरीन को बेचैन कर गई। उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई है। ये कमरा स्याह रंग के कंट्रास्ट में बना हुआ था। हर चीज गहरी स्याह और ग्रे थी। एक तरफ जहाजी साइज बेड पड़ा था, जबकि उसके बिल्कुल ऊपर वाली दीवार पर एक तस्वीर लगी थी। लेकिन जैसे ही महरीन ने मुजाहिद शाह का चेहरा देखना चाहा तो अफसोस किए बिना न रह सकी, क्योंकि उसका चेहरा पेंटशुदा था, जैसे जानबूझकर चेहरा छुपाया गया हो। उसे काफी तजस्सुस था। उसने पूरे कमरे में छानबीन कर दी थी कि कोई सुराख ही मिल जाए जिससे वो मुजाहिद शाह के चेहरे को देख सके, मगर सब बेसुध था। उस कमरे से महरीन को वहशत हो रही थी। उसका सुर्ख लहंगे में डूबा हुआ वजूद उस कमरे में बेचैन हो रहा था। तभी उसने चेंज करने का सोचा था, लेकिन उसके पास पहनने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुजाहिद शाह ने कहा था कि वो अपने घर से कुछ नहीं लाएगी। वो कुछ देर कमरे का जायजा देती रही, जो तकरीबन उसके अपने घर जितना बड़ा था। कमरे में जरूरत की हर चीज मौजूद थी, यहाँ तक कि एक छोटा सा किचन भी एक तरफ बना हुआ था। थक हार कर वो सोफे पर बैठ गई। उससे कामदार जोड़े और जेवर में रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने वो सारी ज्वेलरी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख दी थी। लेकिन वो कपड़े कैसे तब्दील करे, कुछ सोचकर वो अलमारी की जानिब गई। जैसे ही अलमारी खोली, पहले तो घबरा गई, क्योंकि एक तरफ अलमारी बिल्कुल खाली थी, जबकि दूसरी तरफ मर्दाना कपड़े टंगे हुए थे, वो भी सिर्फ काले रंग के। ये देखकर उसे उलझन हुई। उसकी रंग बिरंगी जिंदगी थी और यहाँ उसके शोहर के कपड़े भी काले हैं। उसके कमरे का सारा फर्नीचर भी काला था। वो यही सोच रही थी कि उसे एक मुनासिब सा ट्राउजर और शर्ट नजर आया। उसने वो निकाला और तब्दील करने चली गई। वो बहुत नर्वस थी कि जब उसका सामना उसके शोहर से होगा तो उसका क्या हाल होगा। सब कुछ उसने अल्लाह के सपुर्द कर दिया था। उसे मुजाहिद शाह का इंतजार करते करते 4 बज गए थे, लेकिन उसका शोहर अभी तक नहीं आया था।
उसे वो इंतजार मुश्किल लग रहा था। ये सोचकर वो बेड पर लेट गई और कब उसकी आंख लगी उसे पता भी नहीं चला। वो 3-4 नौजवानों के साथ बैठा हुआ था। चलो अब तुम्हारी बारी है, उसके दोस्त ने उसकी तरफ इशारा किया। उसने सिगरेट का कश लिया और फिर से कुछ बोतल घुमाई। वो बोतल उसी की तरफ आ गई थी। चलो अब तुम्हें कोई सच बताना होगा, ऐसा सच जो अभी तक हमसे छुपाया हुआ है, एक दोस्त ने उससे सवाल किया। मुजाहिद शाह की आवाज हवा में गूंजी। ये सच जो मैंने तुम लोगों से आज तक छुपाया है, ये है कि मेरी बीवी अभी मेरा इंतजार कर रही है और मुझे जाना चाहिए। ये कहते साथ ही उसने सिगरेट एस्ट्रे में रखी, अपना कोट लिया और वहां से उठ खड़ा हुआ। ये कैसी बातें कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? तुमने कब शादी की? अब तक तो तुमने शादी नहीं की थी। और हमारी भाभी कैसी हैं? पीछे से ये सवाल पर सवाल आ रहे थे, लेकिन मुजाहिद शाह को उनकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपनी ही धुन में हवेली के रास्ते पर चल पड़ा। साहब जी, बीबी जी तो आपका कब से इंतजार कर रही हैं। मैंने उन्हें कमरा दिखा दिया था, आप इतना लेट क्यों आए? हवेली के मुलाजिम ने जैसे ही मुजाहिद शाह से सवाल किया, वो फौरन से गहरी सोच में गुम हो गया। और रहीमुल्ला, मुझे याद ही नहीं रहा। पता है ना, ये वक्त मैं अपने फ्रेंड्स को देता हूँ। चलो तुम फिक्र ना करो, ऐसा करो तुम भी अपने कमरे में चले जाओ, तुम्हारा शुक्रिया। वो मुस्कुराकर मुलाजिम से कहता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसकी मंजिल उसका कमरा था। लंबे लंबे डग भरते हुए उसने सीढ़ियां अबूर की और अपने कमरे में पहुंचा। यूं एक झटके में उसने कमरे का दरवाजा खोला। उसे लगा था कि मेरीन उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो चौंक गया। लाइट ऑन करता तो शायद मेरीन डिस्टर्ब हो जाती। यही सोचकर उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मेरीन को तलाश करने लगा। जैसे ही उसकी टॉर्च बेड पर पड़ी, ये देखकर उसके होश उड़ गए। मेरीन उसी के ट्राउजर शर्ट में बेड पर बेसुध सो रही थी। पहले तो वो मुस्कुरा दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। टॉर्च मेरीन के चेहरे के बिल्कुल करीब थी। मेरीन को नींद में अजीब सी बेचैनी हुई। उसने जैसे ही आंखें खोली तो वो चमकने लगी। ये देखते ही मुजाहिद ने फौरन टॉर्च पीछे कर ली। जैसे ही मेरीन ने आंखें खोली, अपने सामने वो चेहरा देखकर उसके हलक से चीख निकल गई। अगले ही पल मुजाहिद ने आगे बढ़कर अपने हाथ से वो चीख दबा दी। चुप चुप हो, मैं हूँ, चीखने की कोई जरूरत नहीं है, उसने सख्ती से कहा। मेरीन फौरन पीछे हुई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुजाहिद ने सुकून से जवाब दिया, मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? ये तो मेरे शोहर के आने वाला वक्त है। ये तो उनका रूम है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम उनके क्या लगते हो? मेरीन बगैर कुछ सोचे समझे बोलने लगी। उसे याद आ गया था कि वो कैसे उस शख्स से टकराई थी और फिर कैसे उसने खींचकर थप्पड़ मारा था। पर अंदर से अब वो बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन जानती थी कि अगर उसने अपना डर जाहिर किया तो वो पकड़ी जाएगी। उसकी बात सुनकर मुजाहिद शाह ने लाइट्स ऑन कर दी। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम उनके क्या लगते हो? तुम्हें वो थप्पड़ भूल तो नहीं गया? नहीं भूला तो आज याद करवा दूंगी, समझे? मेरीन ने दांत पीसकर कहा। ये बात सुनकर मुजाहिद शाह हंस पड़ा और बोला, वो थप्पड़ ही तो वजह है कि आज तुम यहाँ हो, समझी? उसकी बात सुनकर मेरीन के पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या मतलब? मतलब ये कि उस थप्पड़ की वजह से ही तुम मेरी बीवी हो। मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो सोचा कि तुम बिल्कुल वाइफी मटेरियल हो, लेकिन जैसे ही तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हें अपनी बीवी बनाकर इस थप्पड़ का बदला जरूर लूंगा। और देखो, आज तुम मेरे सामने मेरी बीवी की हैसियत से मौजूद हो। मुजाहिद शाह ये कहते साथ ही उसके बिल्कुल करीब आया था। ये देखकर मेरीन एक झटके से उससे दूर हुई। देखो, मेरे साथ मजाक करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे शोहर नहीं हो सकते, मेरीन ने गुस्से से कहा। मुजाहिद तंग आ गया था। मुझे नहीं पता था कि खूबसूरत लड़कियां इतनी बेवकूफ होती हैं। चलो ना मानो, ये कहते साथ उसने मोबाइल निकाला और फिर एक कॉल मिलाने लगा। जी सर, बताइए, कोई परेशानी है? फरमान की आवाज सुनकर मेहरीन के होश उड़ गए। अरे नहीं फरमान, बस तुम्हारी बहन तुम्हें याद कर रही थी तो मैंने सोचा तुमसे बात करवा दूं। फरमान मुस्कुरा दिया। मेरी बहन ने कभी मुझसे दूरी अख्तियार नहीं की ना, चलें बात करवा दें। ये सुनकर मेहरीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर दौड़ गई थी। वो बस नफी में सर हिला रही थी। मुजाहिद ने उसकी हालत देखी तो फौरन स्पीकर बंद कर दिया। अरे नहीं फरमान, वो शर्माकर बाहर चली गई।
मुजाहिद ने गहरी सांस ली और मोबाइल बंद कर दिया। चलो अब तो यकीन आ गया होगा कि मैं मुजाहिद शाह हूँ, तुम्हारे भाई का बॉस, जिसको तुमने उस रोज शॉपिंग मॉल में थप्पड़ मारा था। कुछ याद आया? यह सुनकर महरीन की सीटी गुम हो गई थी। अगले पल उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा, उसकी आंखें बंद होने लगी। मुजाहिद ने ये हालत देखी तो घबरा गया। महरीन, आर यू फाइन महरीन? आई नो तुम ड्रामा कर रही हो ना, मुझसे बचना चाहती हो कि कहीं मैं तुमसे थप्पड़ का बदला ना ले लूं। देखो ये ड्रामे नहीं चलेंगे, चलो ड्रामा बंद करो। वो दो टोक लहजे में बोला था, पर वो कहाँ जानता था कि महरीन को तो सच में सदमा पहुंचा है। इससे पहले कि महरीन गिरती, मुजाहिद ने उसे सहारा दे दिया। महरीन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मुजाहिद ने घबराकर उसके दिल की धड़कन चेक की थी जो थम चुकी थी। उसको अचानक से यही याद आया था कि कैसे महरीन की भतीजी को दिल की बीमारी है। कहीं तुम्हें तो दिल की बीमारी नहीं? वो सर थाम कर रह गया। जब बाजू में थामे महरीन को वो उसका वजूद देख रहा था। अगले ही पल उसे बेड पर ले जाकर कंफर्ट करवाया और डॉक्टर को बुलाया। नहीं नहीं, आपकी बेगम को कुछ नहीं हुआ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा ये तो बस परेशानी की वजह से बेहोश हो गई थी। मुजाहिद ने परेशानी से कहा, नहीं डॉक्टर साहब, इनकी फैमिली में बीमारी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को भी ऐसी कोई बीमारी हो। आप बता दें टेस्ट करवाने की जरूरत है तो हम करवा लेते हैं। ये सुनते हुए महरीन को होश आया। उसने डॉक्टर और मुजाहिद की बात सुनी तो उसका दिल टूट गया। वो फौरन उठकर बैठ गई। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्यों मेरा टेस्ट करवाना चाहते हैं? महरीन ने चीख कर कहा। डॉक्टर ने तसल्ली दी, जी महरीन, आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं आपके शोर को यही समझा रही हूँ। लेकिन देखिए डॉक्टर, इनकी भाई की बेटी को दिल की बीमारी है, मैं एहतियातन ही टेस्ट करवाना चाहता हूँ। चलो ठीक है, फिर किसी भी दिन अपनी वाइफ को लेकर अस्पताल आ जाएं, हम इनका टेस्ट करवा लेंगे। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली गई। महरीन अपने घुटनों में सर देकर रोने लगी। तुम क्यों रो रही हो? मैंने कौन सा तुम पर जुल्म किया है? मुजाहिद उसके करीब आकर संजीदगी से बोला, जुल्म नहीं, आपने मेरे साथ धोखा किया है। धोखे से मुझसे निकाह किया, इसलिए आप मेरे सामने नहीं आए, क्योंकि अगर आ जाते तो मुझे पता चल जाता कि आप ही वही इंसान हैं जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। फिर मैं मर कर भी आपसे शादी न करती। अभी उसने इतना ही चीख कर कहा था कि अगले पल मुजाहिद ने फासला मिटा दिया। खबरदार, जो आज के बाद मुझसे ऐसी जुबान लड़ाने की कोशिश भी की, वरना तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद ना कर दी तो मेरा नाम बदल देना। ये कहते हुए मुजाहिद की आंखों में गुस्सा वाज़ेह था। एक थप्पड़ पड़ने की वजह से मैंने तुमसे शादी कर ली, पर आगे अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं हर हद पार कर जाऊंगा। इस हरकत पर महरीन के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मुजाहिद फौरन उससे अलग हुआ और वहां से चला गया। मुझे अपने भाई के घर जाना है। 3-4 दिन बाद महरीन ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मुजाहिद, जो उस वक्त टीवी पर बैठा मैच देख रहा था, फौरन बोला, तुम वहां नहीं जा सकती। मैं क्यों नहीं जा सकती? हालांकि ऑपरेशन है, अगर मैं ना गई तो सबको कितना बुरा लगेगा। मुझे जाना है, महरीन ने आराम से कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ऊंची आवाज में बात की तो मुजाहिद गुस्से में आ जाएगा। मैंने कहा ना, तुम नहीं जा सकती। तुमसे ज्यादा मुझे फिक्र है। मैंने ही तुम्हारी भतीजी के इलाज के लिए पैसे दिए हैं। मुझे वक्तन फवक्तन खबर है। तुम फिक्र मत करो, जैसे ही न्यूज आएगी मैं तुम्हें बता दूंगा। देखिए, मुझे अपने भाई से बात करनी है, महरीन ने धीरे से कहा। वो गुस्से में आ गया था। इससे पहले कि मुजाहिद उसकी तरफ बढ़ता, महरीन दौड़ती हुई कमरे में चली गई। इस हरकत पर मुजाहिद दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। वो जान गया था कि महरीन अब उससे डरने लगी है। मुजाहिद को महरीन से कोई इतनी ज्यादा नफरत नहीं थी और ना ही नफरत की आग में उसने महरीन से निकाह किया था। वो इतना जरूर जानता था कि महरीन मासूम है। 3 दिन बाद हाला का ऑपरेशन था। मुजाहिद को हर बात की खबर थी। जैसे ही ऑपरेशन कामयाब हुआ, उसने महरीन को बताने का सोचा, मुबारक हो, तुम्हारी भतीजी का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। आज हम दोनों अस्पताल जाएंगे। महरीन ने ये सुना तो फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। मुजाहिद उसे अस्पताल लेकर गया। जब अगले ही पल मुजाहिद की नजर एक औरत पर गई तो उसकी सांसें थम गईं। वो औरत जो कि बुर्के में थी, उसने हिजाब से अपने चेहरे को लपेटा हुआ था। मुजाहिद के साथ महरीन को देखकर उसकी आंखें खुल गई थी। मुजाहिद ने फौरन महरीन का हाथ अपने हाथ में ले लिया
اور اس کی गिरफ्त मजबूत कर दी, जैसे सामने वाली लड़की को कुछ बावर करवाना चाहता हो कि महरीन उसके लिए कितनी अहम है और ये जताना चाहता हो कि महरीन उसकी बीवी है। महरीन ने अपना हाथ आजाद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुजाहिद ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था जैसे वो उसका हाथ ही कुचल देगा। महरीन सारी रात यही सोचती रही कि आखिर वो औरत कौन थी। क्या मुजाहिद से ये सवाल करना चाहिए? मुजाहिद जो उसके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा था, उसके साथ बात कर लिया करता था, उसका रवैया भी अच्छा हो रहा था, लेकिन जब से उस औरत को उसने देखा था तब से मुजाहिद बिल्कुल बदल गया था। ये कैसी दाल बनाई है तुमने, इतनी पतली दाल होती है। मुजाहिद ने दाल का चमचा उठाकर 3-4 दफा हिलाकर उससे कहा था, ऐसे ही तो आपको पसंद है, आपने मुझे उस दिन खुद कहा था कि आपको पतली दाल पसंद है। महरीन हैरान हो गई थी जब अगले पल मुजाहिद ने गुस्से में आकर वो सारी दाल का बर्तन फर्श पर गिरा दिया था। खबरदार, जो आज के बाद मेरे साथ तुमने जुबान लड़ाई, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मुजाहिद घबरा गया था। उस पर उंगली उठाकर चिल्लाकर वो वापस कमरे में चला गया था, जबकि महरीन घुटी घुटी सिसकियां लेने लगी थी। भाई, आपने क्या किया? आपने किस इंसान से मेरी शादी करवाई? क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। मुजाहिद बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। मुझे महरीन के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो टेरेस पर सिगरेट फूंक रहा था, अपने अंदर की जलन को शायद मिटाना चाहता था। कितने अरसे बाद उसका माजी फिर से उसके सामने आ गया था, जिससे वो हमेशा भागता रहा था। लेकिन अपने माजी की वजह से क्या वो अपना हाल तबाह कर देगा? वो यही सोच रहा था जब उसने अपना सर झटक दिया और यही सोचा, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। वो टेरेस से अंदर झांक रहा था, जहाँ महरीन उसी के बेड पर करवट बदल रही थी। उसे भी तो नींद नहीं आ रही थी। ये सोचकर वो अंदर चला गया। महरीन, उसने महरीन को पुकारा था। महरीन फौरन साकित हो गई थी, जैसे वो ये शो करवा रही हो कि वो सो रही है। महरीन, मैं जानता हूँ तुम नहीं सो रही, मेरी बात सुनो, उसने सख्ती से कहा। मगर महरीन ने उसकी बात का कोई असर न होने दिया। जब अगले ही पल उसने हाथ से महरीन को अपनी तरफ खींचा। उसकी इस हरकत पर महरीन झटक कर उठ बैठी। ये क्या हरकत है? क्या मुझे अब सोने भी नहीं देंगे? मेरी नींद भी हराम कर दी। क्या अब मुझे चैन से सोने का भी हक नहीं है? उसकी बात को नजरअंदाज करते ही मुजाहिद ने आई एम सॉरी कहा। अगले ही पल मुजाहिद के मुंह से सॉरी का लफ्ज सुनकर महरीन के होश उड़ गए। मुझे माफ कर दो, मैं उस वक्त थोड़ा गुस्से में था। महरीन ने जब ये सुना तो उसका गुस्सा कुछ कम हुआ था, पर धीरे से बोली, सॉरी का क्या फायदा है? आप 2 दिन बाद फिर से चिल्लाएंगे मुझ पर, फिर से आपको गुस्सा आ जाएगा। ये तो रोज का मामूल है। हमारे बीच सब कुछ पहले से कितना बेहतर हो गया था, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उस अस्पताल में उस औरत को देखकर आपको क्या हो गया था? आखिर मैं जान सकती हूँ वो औरत कौन थी? मेरीन ने बेचैनी के साथ मुजाहिद की आंखों में आंखें डालकर कहा था, जबकि मुजाहिद के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने एक झटके से मेरीन को खुद से दूर धकेल दिया था। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। और यूं मुजाहिद बिना कुछ बताए सो चुका था। वो तो उन सवालों से मुंह फेरना चाहता था। उसके पास उन सवालों के जवाब नहीं थे जो मेरीन के दिल में उसके लिए थे, लेकिन मेरीन का हक था। वो जानना चाहती थी कि आखिर उस औरत का उसकी जिंदगी में क्या मकाम है कि उसके आने से मुजाहिद का वो रवैया बिल्कुल बदल गया था। जब अगले दिन अचानक से रहीमुल्लाह ने बताया था, बीबी जी, आपसे कोई मिलने आया है। मेरीन घबरा गई। क्या भाई भाभी आए हैं? वो तड़प कर बोली थी। मुरझाया हुआ चेहरा एकदम से खिलखिला उठा था। रहीमुल्लाह ने फौरन कहा, नहीं जी, छोटी बेगम आई हैं। ये सुनकर महरीन हैरान रह गई थी। ये छोटी बेगम कौन है? महरीन ने जैसे ही सवाल किया तो रहीमुल्लाह ने सर झुका दिया। ये तो मैं नहीं बता सकता, शायद वो खुद ही आपको बता दे, आप उनसे मिल लें। रहीमुल्लाह फौरन वापस चला गया, जबकि मेरीन डरते डरते नीचे उतरने लगी थी। उसने जैसे ही देखा तो ये वही औरत थी जो कि बुर्के और हिजाब में सामने बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज सुनकर मेरीन घबरा गई थी। ये आवाज भी काफी सहमी हुई थी। जी, आप कौन और आप मुजाहिद की क्या लगती हैं? मेरीन ने सवाल किया। औरत रोते रोते मेरीन के गले लग गई थी। प्लीज मुझे वो दे दे जो मेरा हक है। आप यूं मेरा हक नहीं छीन सकती। आज तक मुझे मेरा हक नहीं मिला। उन्हें समझाए ना, ये क्या कर रहे हैं? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। ये गलतियां हो जाती हैं, पर यूं रुख तो नहीं मोड़ा जाता।
ان سے بولیں کہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب نہ کرے، میں انہیں کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ مہرین نے جب یہ باتیں سنی تو ایسے لگا جیسے اس کی روح فنا ہو گئی ہو۔ فوراً سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر آپ کون ہیں؟ میں رملا ہوں، میں مجاہد کی محبت ہوں، مجاہد کی پہلی محبت۔ کیا مجاہد نے آپ کو نہیں بتایا؟ یہ سن کر مہرین کی سانس اکھڑنے لگی تھی، جیسے گلا حلق تک خشک ہو چکا ہو۔ نہیں، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ نہیں، مجاہد نے مجھے کسی رملا کا نہیں بتایا، میں تمہیں بتاتی ہوں نا۔ رملا فوراً بولی، میں تمہارے مجاہد کی پہلی بیوی ہوں۔ ہاں، مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجاہد مجھ سے ناراض ہو گیا تھا اور مجھے اس محل سے نکال دیا تھا، پر آج بھی میں اس کے دل میں ضرور ہوں، تبھی تو وہ مجھے دیکھ کر کیسے تم سے منہ موڑ چکا تھا۔ میں جانتی ہوں وہ تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ مجاہد ہمیشہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آج بھی میں ان کے دل میں ہوں۔ رملا کی باتیں مہرین کے دل میں تیر کی طرح چل رہی تھی۔ نہیں، مجھے تمہاری کسی بھی بات کا یقین نہیں۔ جب تک مجاہد نہیں آ جاتا تب تک میں تم سے کچھ نہیں کہہ سکتی، اور نہ ہی میں تمہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت دے سکتی ہوں۔ تم چلی جاؤ۔ مہرین گھبراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے جانے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ رملا وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں اچانک سے گرجدار آواز آئی تھی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ مجاہد کی تھی، جس کی آواز نے ان دونوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجاہد، یہ دیکھیں نا، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی محبت ہے، یہ کون ہے؟ مہرین فوراً سے مجاہد کے پاس گئی تھی۔ جبکہ مجاہد نے رملا کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے دانت پیس کر سوال کیا تھا۔ میں یہاں نہیں ہوں گی تو اور کہاں ہوں گی؟ رملا نے جواب دیا۔ مجاہد، آپ نے مجھے اپنی زندگی سے الگ کر دیا تھا۔ جب اگلے ہی پل مجاہد نے انگلی اٹھا کر اسے صاف صاف کہا تھا، دیکھو رملا، میں نے تمہیں طلاق دے دی تھی اور یہ کورٹ میں بھی بات طے ہو گئی تھی، پھر تم کس حق سے یہاں آئی ہو؟ تم یہاں نہیں آ سکتی۔ مہرین کو ایسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ رملا فوراً سے بولی، ہاں، ہماری طلاق ہو گئی ہے، لیکن آج بھی ہم دونوں الگ نہیں ہوئے ہیں، اس کی گواہی ہماری اولاد ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے پیٹ میں ہاتھ رکھا تھا، جبکہ مہرین کو ایسا لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ وہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو رملا، تم جھوٹی ہو، تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے، یہ اولاد میری نہیں ہے، یہ جس کی ہے اسے بھی میں جانتا ہوں اور تم بھی جانتی ہو، پھر یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، میں اب مہرین کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مجاہد نے مہرین کا ہاتھ تھاما تھا اور مہرین کو ایک نظر دیکھا تھا، جبکہ وہ نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اگلے ہی پل مجاہد نے فوراً سے گارڈز کو آواز لگائی تھی، گارڈز، اس عورت کو میرے گھر سے دور لے جاؤ اور آج کے بعد یہ مجھے میری حویلی میں دکھائی نہ دے۔ یوں گارڈز نے رملا کو تھام لیا تھا۔ رملا چلاتی رہی تھی لیکن مجاہد نے اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی۔ اگلے ہی پل مہرین نے اپنا وہ ہاتھ مجاہد کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ وہ روتے ہوئے واپس اوپر کو بھاگ گئی تھی۔ مہرین میری بات تو سنو۔ مجاہد نے اسے بلانے کی بہت کوشش کی تھی۔ مہرین کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مجاہد نے اسے اتنا بڑا سر چھپایا تھا۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ میری بات تو سنو، جو تم سوچ رہی ہو ویسا نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے یہ سچ کیوں چھپایا؟ کیا آپ پہلے سے شادی شدہ تھے؟ مجاہد نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا، ہاں، یہ بات سچ ہے، میں شادی شدہ تھا۔ وہ میری پہلی بیوی تھی، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا اور تم میری آخری محبت ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ مہرین کو ایسا لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ تم میری آخری محبت ہو اور رملا نے مجھے دھوکا دیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ عشق لڑایا۔ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں اتنا امیر بھی نہیں تھا، پر اب جب میں امیر ہو گیا ہوں تو وہ میرے پاس آ رہی ہے اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کی اولاد میری ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اولاد تو اسی کی ہے جس کے ساتھ اس نے شادی کر لی تھی۔ میں نے اسے طلاق دے دی تھی، بات وہیں پر ختم ہو گئی تھی، لیکن اس روز ہسپتال میں جیسے اس نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھا تو وہ پھر سے میری زندگی برباد کرنے کے لیے میری زندگی میں آنا چاہتی ہے، پر میں ایسا بالکل بھی نہیں کرنے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے مجاہد نے پھر سے مہرین کا ہاتھ
थाम लिया था। मेरीन, ये बात सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली दफा देखा था तो तुम मुझे बहुत मासूम लगी थी। पहली दफा कोई लड़की मुझे ऐसी लगी थी जिसे मैं अपनी बीवी बना सकता था, लेकिन उसके बाद जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि जिस लड़की को मैं इतना मासूम समझता हूँ उसने मुझे गुस्से में थप्पड़ मार दिया है। लेकिन ये बात सच है, मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए बिल्कुल नहीं की थी। अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे बदला ले रहा होता, पर मैंने कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की जुर्रत भी नहीं की। मुजाहिद की बात सुनकर मैंने उनके दिल को कुछ महसूस किया था। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने तुमसे धोखे से शादी की, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुजाहिद ने अपने कान पकड़ लिए थे जब मेरीन ने नफी में सर हिलाया था। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन मुझसे वादा करें कि वो औरत फिर से हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, और उसके अलावा आपकी कोई सच्चाई तो नहीं है जो मुझसे छुपी हुई है। जब मुजाहिद ने अपना सर हिलाया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरीन खुश हो गई थी, लेकिन उसे बस एक बात का शिकवा था। वो शिकवा ये था कि मुजाहिद ने उसके टेस्ट करवाए थे, लेकिन वो टेस्ट उस वक्त करवाए थे जब उसकी शादी की शुरुआत थी। शायद उस वक्त मुजाहिद उससे वैसे ही चिढ़ा हुआ था जिसकी वजह से वो टेस्ट करवाना चाहता था, पर टेस्ट करवाकर उसे तसल्ली मिल गई थी क्योंकि उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक थीं। मेरीन ने सुख का सांस लिया था। बाद में मुजाहिद ने माफी भी मांग ली थी। हाला 2 साल की हो गई थी। आज उसकी सालगिरह थी जिसके लिए मेरीन बहुत ज्यादा तैयार हो रही थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो कि एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर मुजाहिद ने उसे दी थी। मुजाहिद ने उसे साड़ी में देखा तो हैरान हो गया था। उसके करीब आया। तुम पर यह साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ये कहते हुए उसने एक डायमंड की रिंग अपनी जेब से निकाली और फिर उसकी उंगली में पहना दी थी। जब मेरीन ने ये देखा तो हक्का बक्का हो गई थी। जिंदगी में पहली दफा उसे मुजाहिद ने ये तोहफा दिया था। आई लव यू कहते साथ ही मुजाहिद ने उसके हाथ पर अपने लब रख दिए थे। शर्माहट के मारे मेरीन से कुछ नहीं कहा जा रहा था। वो बस इतना ही कह पाई, चले, हमें देर हो रही है, सारे गेस्ट आ गए होंगे, हालांकि फूफी ही लेट हो जाएगी तो सब बुरा मान जाएंगे। मुजाहिद भी मुस्कुरा दिया था। कुछ देर बाद वो दोनों उस पार्टी में मौजूद थे। ये सच्चाई मेरीन ने कभी भी अपने भाई फरमान को नहीं बताई थी कि मुजाहिद ने उससे इस वजह से शादी की थी। इस सच्चाई को दबा दिया था और यूं उनकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया था और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे थे।